Welcome back to my YouTube channel Mathematics by Vimal Srivastav. Now in this video I will explain the next exercise of coordinate geometry, exercise 7.3, and that is related to area of triangle. So let A, B, C are the vertices of triangle. A, it is B, it is C. The coordinate of A, let that is x1, y1. Coordinate of B, x2, y2. And coordinate of C, that is x3, y3. Then we can write the formula of area of triangle like this. So area of triangle is equal to 1 upon 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So the area of triangle, that is 1 by 2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, and the area of triangle is expressed in square unit. Square unit. So now we solve the question number 1. So in question number 1 we have given find the area of triangle. Find the area of triangle whose vertices are given. The coordinate of A, that is 2, 3. The coordinate of B, that is -1, 0. And coordinate of C, that is 2, -4. So first we write the formula. Area is equal to 1 upon 2 x1 y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Now the vertices of A are x1, y1, the coordinate of B, that is x2, y2, and the coordinate of C, that is x3, y3. So now put all the value. So that is 1 by 2. Now x1, the value of x1 is 2 into y2 minus y3. y2 की वैल्यू है 0 और y3 की वैल्यू है 4. तो 0 minus minus means it will be plus. प्लस x2 की वैल्यू है -1 इंटू y3 माइनस y1. सो y3 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है -3 प्लस x3 की वैल्यू है 2 इंटू y1 माइनस y2. तो y1 की वैल्यू है 3 -0. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका होगा 1 upon 2. Now 4 plus 0 4, so 4 2s are 8. Minus 4 and minus 3, minus 7 and minus 7 into minus 1, that will be plus 7 plus 2 3s are 6. So that is 1 upon 2 into 8 plus 7, 15, 15 plus 6, 21. So 21 upon 2, that is 10.5 square unit. That is the area of this triangle. Now in question number 2, we have to find the value of K if the point 7 minus 2, 5 1 and 3K are collinear. तो देखिए हमें दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं. तो कोलिनियर के केस में हमें पता है
कि अगर हम माने ए बी और सी तीनों इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, सो इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट विल बी इक्वल टू 0. मीन्स वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल will be 0 if the points are collinear. Clear? If the points are collinear. So now first we find the area of triangle. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू 1/2. देखिए फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए. x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. अब आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुट कर दीजिए. तो x1 की वैल्यू है 7 इंटू y2 माइनस y3 मीन्स 1 माइनस k. x2 की वैल्यू है 5 y3 माइनस y1 सो दैट इज k y3 माइनस y1 k y3 और y1 की वैल्यू है -2 सो माइनस माइनस दैट विल बी प्लस प्लस x3 की वैल्यू है 3 y1 माइनस y2 y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -1. क्लियर? अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई करिए तो इट विल बी 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 और -2 -1 -3 इंटू प्लस 3 दैट इज माइनस का 9. तो हमारा एरिया कितना आ गया? एरिया हमारा आ गया 1/2. अब देखिए 7 और 10 17 में से 9 माइनस कीजिए तो ये बचेगा आपका 8 और -7k प्लस 5k दैट विल बी -2k. अब हमने ऊपर लिखा है ऑलरेडी कि इफ the 3 points are collinear then the area of triangle that will be equal to 0. तो अब इस चीज को हम क्या करेंगे? the area will be equal to 0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 भी 0 हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 और 2k इक्वल टू 8. तो k की वैल्यू आ गई 8/2 दैट इज 4. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3 and also find the ratio of this area to the area of given triangle. देखिए ABC ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं. हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन ट्रायंगल्स की साइड के मिड पॉइंट से बना है. लेट हमने AB का मिड पॉइंट ले लिया D है, BC का मिड पॉइंट हमने ले लिया दैट इज E एंड AC का मिड पॉइंट ले लिया F. अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए तो मीन्स हमको ट्रायंगल DEF का एरिया फाइंड करना है. क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. अब क्लियरली हमको दिया है कि D AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है. तो सबसे पहले हमें D E और F के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हम
जब m1 और m2 की वैल्यू 1 लेते हैं तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा। y1 प्लस y2 अपॉन 2, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 2, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 1 और 0। अब हम E के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो 2 प्लस 0 2, 2 अपॉन 2, तो E का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब 1 और 3 4, 4 अपॉन 2, तो E के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 2। नेक्स्ट हमें निकालना है F के कोऑर्डिनेट। तो F का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट होगा 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो अब हमें D, E और F के कोऑर्डिनेट पता है, तो अब हम ट्रायंगल DEF का एरिया निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए यहां पर x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है यहां पर 1, y2 माइनस y3 मीन्स 2 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू है अगेन 1, y3 माइनस y1, तो y1 y2 y3 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू 0 है और y1 माइनस y2 मीन्स 0 माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1, 1 इंटू 1, ये 1 आ गया, प्लस 1 प्लस 0, सो दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 2। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि जिसमें हमको इन ट्रायंगल्स के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल बनना था उसका एरिया फाइंड करना था। सेकंड हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल ABC गिवन है, मींस हमको DEF का एरिया और ABC के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सो नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. Now we find the area of triangle ABC. So again the formula is 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है हमारी 0, y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू है 1 माइनस 3, x2 की वैल्यू है 2, y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 मीन्स 3 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 3 प्लस 1 प्लस x3 की वैल्यू है आपकी अगेन 0, y1 माइनस y2 दैट इज माइनस 1 माइनस 1। क्लियर? अब देखिए 1 अपॉन 2 ये तो 0 हो गया, प्लस 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 6, 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8, माइनस 1 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। सो दैट इज 1/2 इंटू 8, सो ये एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
F upon to the area of triangle ABC। अब देखिए DEF का एरिया कितना है, DEF का एरिया है हमारा 1 स्क्वायर यूनिट, और ABC का एरिया हमने निकाला है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, दोनों का रेशियो आएगा 1/4, और वी कैन ऑल्सो राइट 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order as -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम A और C को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए A और C को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो वो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल ABCD एरिया के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, बिकॉज ये जो डायगोनल AC है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालें और दोनों को ऐड कर दें। तो देखिए फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले हमने ट्रायंगल लिया ABC। देखिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हमने A के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं -4 -2, B के कोऑर्डिनेट हैं -3 -5 और C के कोऑर्डिनेट हैं 3, -2। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2। x1 की वैल्यू है -4, y2 माइनस y3, x1 y1 x2 y2 माइनस y3 मीन्स -5। अब ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका +2। x2 की वैल्यू है -3, y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू भी -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू है 3 इंटू y1 माइनस y2 दैट इज -2, y1 माइनस y2 तो -2 माइनस -5 दैट इज +5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब -5 + 2 -3, -3 इंटू -4 दैट विल बी प्लस का 12। ये -2 + 2 ये हो गया 0 और -2 + 5 दैट इज 3, 3 3 = 9। तो ये आपका आ गया 12 + 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने एरिया निकाल लिया अभी ABC का। अब हम एरिया निकालेंगे ACD का। देखिए तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये A हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। A के कोऑर्डिनेट हमारे वही हैं -4, -2। C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट हैं दैट इज 2, 3। सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखिए, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और डी के कोऑर्डिनेट x3 y3। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। तो x1 की वैल्यू तो आपकी -4 है, -4, y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस -2 -3, -2 x2 की वैल्यू है 3, y3 माइनस y1 तो 3 और माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो गया, x3 की वैल्यू है 2, y1 माइनस y2 तो -2 और ये माइनस माइनस +2, तो ये आपका हो गया 1/2, -2 और -3 -5 इंटू -4 दैट विल बी 20, 3 + 2 5 3 जा 15। अब ये तो आपका 0 हो गया, तो ये आपका आ गया 20 + 15 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब आप दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना था, दैट इज 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है आपका 35/2। दोनों को आप ऐड करिए, एलसीएम 2 आएगा, तो ये 21 + 35 तो 5 और 1 6, 2 और 3 5, 56/2 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट। So the area of quadrilateral that is 28 square unit। तो अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।